اللہ 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 اللہ۔ احد پہاڑ ہم لوگ جب مدینے میں تھے تو اس کو ہم لوگوں نے ناپا ہے گاڑی سے، تو ایک چھور سے دوسرے چھور تک پہنچنے کے لیے تقریباً 7.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پہاڑی اونچی اتنی ہی ہے، تو قلیل عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے کتنا زیادہ اجر رکھا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ لہذا اب آج کے اس زمانے میں اگر کوئی رشتہ دار ہے تو لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر رشتہ دار نہیں ہے، غریب ہے، اجنبی ہے، کہیں باہر سے آ کر کے محلے میں گاؤں میں بسا ہوا ہے، تو لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ جتنی بھیڑ عام لوگوں کے جنازے میں ہوتی ہے اس کے جنازے میں نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر بے نمازی بھی ہے لیکن پیسہ والا ہے تو پھر دیکھیے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور ایک آدمی نمازی بھی ہے لیکن غریب ہے، بہت بڑا سرکل اس کے پاس نہیں ہے، لیکن تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو تھوڑے ہی لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی بے حسی کی طرف دلالت کرنے والی بات ہے جی۔ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو پتہ چلے تو ایک مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ اس کے نماز جنازے میں شرکت کریں، اس کے نماز جنازے میں شرکت کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور اس سے ایک فضیلت یہ بھی معلوم چلتی ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی موحد ہے، توحید والا ہے، اور 40 موحدین اگر اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے دعاؤں کو میت کے حق میں قبول کرتا ہے اور اس کی مغفرت کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ موحد ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شرکت کریں اور جا کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تاکہ اس شخص کی بخشش یا اس کی مغفرت ہو جائے۔ اسی طرح سے سماج اور معاشرے میں اس تعلق سے کچھ مخالفتیں پائی جاتی ہیں جی۔ عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع الجنائز سے منع فرمایا ہے۔ عورتیں جنازے کے پیچھے نہیں چلیں گی، ہاں اگر ان کے لیے انتظام ہے تو نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں، وہ چاہے میت کے گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو۔ اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، تو اگر نماز جنازہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے اگر حصہ متعین ہے اور گاؤں گھر کی عورتیں آنا چاہتی ہیں نماز جنازے میں، وہ تو آ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ نماز جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مخالفتیں معاشرے میں یہ ہے، عام طور پہ عورتوں کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جنازہ پڑھنا یہ صرف مردوں کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک بچے کا مدینہ میں انتقال ہوا، مسجد نبوی میں اس کا جنازہ لایا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہم لوگوں نے، یعنی عورتوں کی جماعت نے بھی جو مسجد میں حاضر تھی، ان لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی مردوں کے ساتھ۔ ہاں مستقل کوئی عورت اگر چاہے کہ ہم امامت کریں، نماز جنازہ ہم پڑھا دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی مرد امامت کرے گا اور اس کے پیچھے یہ لوگ اپنی نماز کو ادا کریں گے، یہی زیادہ بہتر اور صحیح قول ہے۔ اسی طریقے سے جنازے کی اتباع کرنا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنا، قبرستان تک جانا عورتوں کے لیے منع ہے، اس وجہ سے کہ عورتیں کثرت سے جزع اور فضا کرنے والی ہیں، یعنی ان کا دل مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ عورتیں جنازے کی اتباع نہیں کر سکتی ہیں، جنازے کے پیچھے نہیں چل سکتی۔ اسی طریقے سے جی جنازے کے تعلق سے جو مخالفت معاشرے اور سماج میں پائی جاتی ہے،
وہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو مرد حضرات بھی جا کر کے اس کی شکل دیکھتے ہیں، انتقال کے بعد مرد حضرات بھی جا کر کے اس کی شکل دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو عورتیں بھی سب کے سب جا کر کے کیا محرم کیا غیر محرم اس کی شکل دیکھتی ہیں۔ تو یہ کرنا یہ شرعی مخالفت ہے۔ اس سے گھر والوں کو، میت کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اگر عورت کی میت ہے تو انہی لوگوں کو آنے دیں، عورتوں کو آنے دیں، اور مردوں میں انہی لوگوں کو آنے دیں جو اس کے لیے محرم ہے۔ باقی لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ دعا کریں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ لہذا اس طرح کی مخالفتوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے گا جنازے کو جب اٹھایا جاتا ہے جی، تو کچھ لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بلکہ کچھ لوگ آواز بھی لگاتے ہیں، آپ لوگ کیوں بات کر رہے ہیں، کلمہ پڑھیے، کیوں بات کر رہے ہیں، کلمہ پڑھیے، یہ پڑھیے وہ پڑھیے۔ اس طرح کے پڑھنے کا اور جنازے کو لے کر چلنے میں کوئی ذکر کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو لے کر تیزی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے۔ جنازے کو لے کر کے لوگ تیزی کے ساتھ چلیں، اور لوگ کہتے ہیں تیز تیز مت چلیے، دھیرے دھیرے چلیے، سب کو کندھا لینے کا موقع دیجیے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہنا یہ مخالفت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنازے کو اپنے کندھے پر لے کر تیزی کے ساتھ چلو، اس وجہ سے کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کی اچھائی کی طرف اس کو پہنچا دو، اور اگر وہ برا ہے تو یہ وہ بوجھ ہے جس کو تم اپنے کندھے سے جتنا جلدی ہو سکے ہلکا کر دو، جتنا جلدی ہو سکے اس کو اتار دو۔ تو ان مخالفتوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ بچنے کی کوشش کرے۔ جنازے کے تعلق سے یہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، دیگر احادیث اس کے بعد آئیں گی جس میں ہم مزید تشریح آپ کے سامنے کریں گے۔ چلیں اس کے بعد کی روایت پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اپنے سے غریب کو دیکھو اور اپنے سے امیر کی طرف نہ دیکھو، اور یہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ بخاری و مسلم۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اپنے سے کم نعمت والوں کی طرف دیکھو، اپنے سے کم نعمت والوں کی طرف دیکھو۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نام آپ کو معلوم ہے، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اسفل کہتے ہیں نیچے کو، ہے نا، اور اعلیٰ کہتے ہیں اوپر کو۔ اعلیٰ کے مقابلے میں اسفل کا لفظ آتا ہے۔ تو جو تم سے نیچے ہے نا دنیاوی نعمتوں میں، اس کے طرف تم دیکھنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور دنیاوی نعمتوں میں جس کو تم سے زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کے طرف دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہارے لیے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے اس کو تم حقیر نہیں سمجھو گے، اس کو تم حقیر نہیں سمجھو گے۔ یہ حدیث جی بڑی عظیم روایت ہے، اور اس کو اگر
इंसान कमा हक़्क़हू अपनी अमली जिंदगी के अंदर नाफिज कर लेना, तो दुनिया में कोई किसी से हसद नहीं करेगा, कोई किसी से बुग़्ज़ नहीं करेगा। अगर इस नेमत को, इस हदीस को अपनी अमली जिंदगी के अंदर नाफिज कर ले। हसद की वजह क्या होती है? मुझको ये चीज नहीं मिली, उसको क्यों मिली? हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं, वो कार पे क्यों चलता है? हमारी तिजारत छोटी है, उसकी तिजारत बड़ी क्यों है? हमारे पास इतनी जमीन है, उसके पास इतनी जमीन क्यों है? मेरे इतने बेटे हैं, उसके इतने बेटे क्यों हैं? मेरे बेटे बाकमाल हैं, उसके बेटे, मेरे बेटे बेकमाल हैं, उसके बेटे बाकमाल हैं। ये क्यों है? ये करने वाला आदमी ने जी एक साथ दो गुनाह कर रहा होता है। एक तो हसद का गुनाह, खामखा की, उसका क्या कसूर है भाई? अगर उसको माल मिला है आपसे ज्यादा, एक मिसाल दे रहा हूं, तो उसका क्या कसूर है? कोई उसकी अपनी कमाई है वो माल। अल्लाह ताला कहता है रोजी हमने तकसीम की है, जिसको चाहते हैं हम रोजी देते हैं, जितना चाहते हैं उतना देते हैं। औलाद अगर उसके पास ज्यादा है तो क्या वो उसका कसूर है? अल्लाह ताला फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। हम जिसे चाहते हैं उसको बेटी देते हैं, जिसे चाहते हैं उसको बेटा देते हैं। औ युज़व्विजुहुम दुक्रान व इनासा, और जिसे चाहते हैं बेटा बेटी दोनों जाते हैं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहते हैं उसको बांझ रख देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, न बेटा देते हैं न बेटी देते हैं। अब एक आदमी उसको देख करके हसद कर रहा है, तो हसद का गुनाह तो उसको मिलेगा ही, और अल्लाह ताला की तकदीर से नाराजगी का गुनाह भी उसको मिलेगा। कि हसद करने वाला दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर के ऊपर एतराज कर रहा होता है कि उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं? आखिर वही क्यों, मुझे क्यों नहीं? तो गोया वो अल्लाह से ये कह रहा होता है कि मैं इसका हकदार था, ऐ अल्लाह तूने ये नेमत छीन करके उसको अता कर दी, उसको दे दी, तो इसका गुनाह उसको लगेगा। हसद करने वाला, हसद की इस बीमारी और मुहलिक मर्द से अगर हम और आप चाहते हैं कि निजात पाएं, तो इस हदीस को, जो हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई है, इसको चाहिए कि अपने अमली जिंदगी के अंदर हम लोग नाफिज कर लें। और बीमारी से दिल जो हो वो अल्लाह के फजल और उसके तौफीक से पाक हो जाएगा। अगर कोई शख्स उन्हीं लोगों के तरफ देखे जिन्हें दुनियावी नेमतों से अल्लाह ताला ने मालामाल किया है, तो खतरा है जी कि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा पैदा हो जाएगा, या उस शख्स से वो हसद करने लगेगा जिसको वो नेमतें मिली हैं, और ये दोनों चीजें उसकी बर्बादी का बाइस है। दोनों चीजें कैसे बर्बादी का बाइस है हम आपको बता चुके। हसद करेगा तो अपने आप में जलेगा। हसद वो आग है जो इंसान को दूसरे के जलाने से पहले खुद उसको जला करके राख कर देती है। और दुनिया की जिंदगी से हासिद कभी लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता जी। इसी तरह से अल्लाह से अगर वो शिकवा करेगा, अल्लाह के फैसले के ऊपर एतराज करेगा, कभी काम जब उन लोगों को देखेगा जो दुनियावी नेमतों में उससे नीचे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया का जज्बा उसके दिल के अंदर पैदा होगा, और अपनी हालत पर सब्र और कनाअत करेगा, और दूसरे भाइयों से के ताल्लुक से उसका दिल रहम करम से भर जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत को वो अपने ऊपर हकीर नहीं समझेगा। अपने से नीचे से क्या मुराद है जी? अपने से नीचे वालों की तरफ देखो, इससे क्या मुराद है? वो लोग जो दुनियावी नेमतों में आपसे कमतर हैं, वो मुराद है। मिसाल के तौर पे अगर आप तंदुरुस्त हैं तो किसी बीमार शख्स की तरफ देखिए, उस शख्स की तरफ देखिए जो बीमार है कई दिनों से और बीमारी के जानिब मुब्तला है, बीमारी ने उसको परेशान कर रखा है,
तो जब आप बीमारी को देखिएगा ना या बीमार को देखिएगा तो तंदुरुस्ती ये कितनी बड़ी नेमत है, उस नेमत का एहसास आपके ऊपर होगा, उस नेमत का एहसास आपको होगा। और यहाँ एक बात और जान लीजिए जी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी मुब्तला शख्स को देखो, यानी बीमार शख्स को देखो, किसी बीमारी में मुब्तला है, फालिज है उसको, या वो लंगड़ा है, लूल्हा है, अंधा है, बहिरा है, कोई भी बीमारी है, तो उसको देख करके अपने दिल में, उसको सुना के नहीं, अपने दिल में ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़हु तफदीला। अगर ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह की फضل और उसके तौफीक से उसको वो बीमारी नहीं लगेगी। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको वो बीमारी नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाहु व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़हु तफदीला। ये दुआ पढ़े। ये तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझको महफूज रखा उस चीज से जिसमें मैं उसको अल्लाह ने मुब्तला किया है, और मुझको अपने बहुत सारे मखलूकात में फजीलत वाला बनाया। अगर ये दुआ पढ़े कोई आदमी किसी मरीज को देखकर, किसी मुब्तला शख्स को देखकर, तो जब तक वो जिंदा रहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो उस बीमारी से महफूज रहेगा जो बीमारी उस शख्स को लगी है। ताहम आपको बतला दिया कि ये दुआ वो अपने दिल में पढ़े, मरीज को सुना करके ना पढ़े नहीं तो मरीज के दिल में तकलीफ होगी, उसको ये सुन करके तकलीफ होगी, लिहाजा ऐसा काम न करे, बल्कि वो अपने दिल में छुपा करके इस दुआ को पढ़े। इसी तरह से जी, अगर एक आदमी मालदार नहीं है, थोड़ा सा नेमत है उसके पास, तंगदस्त है, तो उन लोगों की तरफ न देखे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज्यादा माल दिया है, बल्कि उन लोगों की तरफ देखे जो उससे ज्यादा फकीर है। यानी एक शख्स को अगर दुनिया में 2 वक्त का खाना नसीब है, सुबह का नाश्ता नहीं करता है, दोपहर का और रात का खाना उसको मिल रहा है, इतना कमा रहा है कि इतना कर सकता है, तो उनको न देखे जो सुबह का भी खाना नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं और रात में भी खा रहे हैं और खा रहे हैं उसके अलावा, उनको ना देखे, बल्कि उन लोगों को देखे। बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनको दिन भर में 1 वक्त का खाना सिर्फ मैसर है, तो उनको जब देखेगा तो जो नेमत इसको मिली हुई है ना, ये नेमत इसकी निगाह में बड़ी मालूम होगी उसको। अपनी नेमत को वो हकीर नहीं समझेगा, अपनी नेमत को वो कलील नहीं जानेगा, और जब ऐसा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया का जज्बा उसके दिल के अंदर पैदा होगा। यानी पता ये चला कि अगर कोई शख्स दुनिया की किसी आजमाइश में मुब्तला है तो वो उन लोगों को देखे जो उससे बड़ी आजमाइश, मुसीबत और परेशानी में गिरफ्तार है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। अगर उनके ऊपर वो गौर व फिक्र करेगा, उनके हालात को देखेगा, तो अल्लाह ताला ने जो नेमतें उसको दे रखी हैं उस पे वो सब्र और कनाअत की नेमत से माला माल होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फضل और उसके तौफीक से हसद जैसी बीमारी से वो महफूज रहेगा। ये तो मामला हुआ जी दुनियावी नेमतों में, लेकिन अगर उखरवी नेमत की तरफ का मामला हो तो किसके तरफ देखना है? आला की तरफ, अपने से ऊपर वालों की तरफ। मिसाल के तौर पे हम सिर्फ फर्ज रोजा रख रहे हैं, एक आदमी है जो जुमेरात का और सोमवार का भी रोजा रख रहा है, अय्याम 20 भी रख रहा है, इबादत के मामले में हम उसको उसके तरफ देखें। एक आदमी सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, फर्ज नमाजें, एक आदमी है जो तहज्जुद भी पढ़ता है, नफिल नमाजें भी पाबंदी के साथ पढ़ता है, तो हमको ये नहीं देखना है हम चल हम तो कम से कम 5 वक्त पढ़ रहे हैं ना, फलाना तो 1 टाइम का भी नहीं पढ़ता है। तो यहाँ
नीचे वाले की तरफ नहीं देखना, यहाँ अपने से ऊंचे वाले की तरफ देखना है। हमको कुरान मजीद का एक पारा याद है तो हम उसको देखें जो कुरान मजीद का हाफिज है। हम कोशिश करें कि हम भी अपने बच्चे को या खुद अपने आप को हाफिज बनाने की कोशिश करें। समझ में आ रही बात? जी। ताकि इसमें क्या होगा, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का जज्बा उसके दिल में पैदा होगा, और उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान किया जी, का वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। ये जन्नत है और इस जन्नत को पाने में जो जिसको चाहिए सबकत करना हो वो सबकत करे। एक दूसरे से आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, नेकी के मामले में एक दूसरे से ऊपर बढ़ जाने की रगबत रखो। और यही चीज सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान कूट कूट करके भरी हुई थी जी। गज़वा तबूक का जब मामला आया और लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने अपने अतियात लेकर के लोग आए, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि आज के दिन मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे छोड़ दूंगा नेकी में। आज ये जज्बा हम लोगों के पास पैदा नहीं होता कि वो 100 दे रहा है तो हम 200 दें, अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए दिया तो आप पढ़ चुके हैं किताबुत तौहीद में रियाकार का मामला क्या होने वाला है। कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि जाओ, जिसके दिखलाने के लिए अमल कर रहे थे उसी से जाके अजर ले लो, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है। वलियादु बिल्लाह, नेकियां उससे ज़ाय होती हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। अल्लाह वो 100 दे रहा है, मैं तेरे रास्ते में 1000 दूंगा। ये जज्बा रखे, तू राजी हो जा बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। समझ गए? लिहाजा उखरवी मामले में इंसान को चाहिए, या नेकी के मामले में इंसान को चाहिए कि वो अपने से कमतर की तरफ नहीं बल्कि अपने से बरतर और बालातर लोगों की तरफ देखे। उसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फस्तबिकुल खैरात, ऐ लोगों नेकियां करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। जब नेमतों में या नेकियों में अपने से कमतर लोगों की तरफ देखेगा तो उसकी नेकी के अंदर कमी हो जाएगी। और दुनियावी नेमतों के ताल्लुक से अगर अपने से नीचे वालों की तरफ देखेगा तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया का एहसास उसके दिल के अंदर पैदा होगा। लिहाजा यह हदीस उन अजीम रिवायतों में से एक रिवायत है जिसके ऊपर अमल करके मुआशरा जन्नत निशां बन सकता है। कोई किसी के साथ हसद, बुग़्ज़, अदावत नहीं करेगा अगर इस हदीस के ऊपर अमल करे कमा हक़्क़हू, और इसके मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे तो। चलिए, अब इसके बाद की रिवायत है जो इंशाअल्लाह कल के दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जनाजे के लिए जो औरत का जो हुक्म है, जो जहाँ मर्दों की जनाजा की जमात होगी वहीं शामिल होगी, या फिर कोई मर्द अलग से औरत के लिए मखसूस कहीं पर जनाजा की नमाज अदा करे? अगर कब्रिस्तान में अगर नमाज जनाजा की जगह है, ठीक है, कब्रिस्तान में अगर नमाज जनाजा की जगह है तो कब्रिस्तान औरतें नहीं जाएंगी। जनाजे की नमाज की इमामत औरत नहीं करेगी, मर्दों के साथ
मर्दों के जिम्न में वो नमाज पढ़ेगी। समझ गया? जी जी। तो जहां मर्दों की जमात हो रही हो वहां पढ़े, या नहीं तो कोई लड़का हो या कोई बच्चा हो वो पढ़ा दे, वो ज्यादा मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम और कोई सवाल है किसी के पास? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक सवाल था। हेलो, जी पूछिए। जिस तरह हम नमाज पढ़ते इस समय, तो वितर की नमाज तहज्जुद के लिए वितर की नमाज नहीं पढ़ा जाता ना। जी आवाज नहीं आ रही आपकी साहब। मैं पूछ रही हूँ ना, जैसे इस समय नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वितर की नमाज पढ़ते हैं, और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो वितर की नमाज नहीं पढ़ते ना। अगर आप ये जानते हैं कि हम वित्र पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, हाँ तो जी। आप इशा के बाद वित्र की नमाज नहीं पढ़िए, अगर कभी तहज्जुद ऐसा के बाद होता है, वित्र की नमाज पढ़िए। अगर ऐसा होता है कि हम तहज्जुद में नहीं उठ पाए तो अगर ऐसा होता है तो वित्र अगर आप पढ़ लिए हैं तो आप, अगर आंख खुल गई तो तहज्जुद पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा वित्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ला वित्रान फिल लैला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रात में 2 वित्र नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि हम उठते हैं तो फिर वित्र आप नहीं पढ़िए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद है कि कुछ लोगों की गलत फहमियाँ है। एक जैसे कि कुछ अरसे से कोई बीमारी में मुब्तला है, ठीक है, कुछ अरसे में कोई बीमारी में मुब्तला है और उनकी तबीयत बिगड़ने में लगी हुई है। अल्लाह उसके जरिए उनके गुनाहों को माफ कर देता है, ठीक है। तो हेलो, क्या बोले, फिर से पूछिए तो सवाल। इनको म्यूट कीजिए जी। हाँ जी जी हेलो, आवाज आप लोगों की बहुत स्लो आ रही है। जी हेलो, जी जी बोलिए। मैं शायद पूछ रहा हूँ कि कुछ जैसे कि कुछ अरसे से कोई बीमारी में मुब्तला है और उनकी तबीयत बिगड़ने में लगी हुई है, अल्लाह उसके जरिए उनके हाँ गुनाहों को माफ कर देता है। तो मेरा कहना यह था कि फिर ऐसे तो नहीं हो सकता है कि उनके बीमारी ठीक नहीं होने की वजह कोई आजमाइश हो रही हो, कुछ लोगों के साथ कोई किस्म की तकलीफ या जगह ज़मीन के मसाइल के वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि इनको अल्लाह का पकड़ हो रहा है। तो ऐसे में लोगों का नजरिया क्या? नहीं, अल्लाह का पकड़ हो रहा है ये नहीं कह सकते हैं। ये हम फैसला करने वाले कौन होते हैं, लेकिन वो आदमी खुद समझे, जो आदमी किसी बीमारी में या किसी परेशानी में मुब्तला है, वो खुद समझे इस बात को कि क्या कोई गलती उससे हुई है, ताकि उसके लिए वो तौबा करे। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वार्न कर रहा हो, तौबा का मौका दे रहा हो, तो उससे वो तौबा करे। वो अपने बारे में ज्यादा जानता है। लेकिन हमको, थर्ड पर्सन को ये हुक्म लगाने का कोई हक नहीं है कि उसको अपने करतूत की सजा मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये हो रहा है, वो लोग कहते हैं कि उसका रूह अटक गया है उसकी वजह से। ये सब बातें बेकार है। किसने कहा आपसे? किसी ने कहा कि उसको उस गलती की वजह से अल्लाह ताला ये सजा? ये भी तो आप उसके बारे में अच्छा क्यों नहीं गुमान करते हैं? ये भी तो सोचिए कि अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर उसके गुनाहों की सजा दे करके उसको पाक करके ले जाना चाह रहा है। ये भी तो हो सकता है। तो हम खैर उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं?
शर सोचने का हक हमको किसने दिया? और अगर हम खैर नहीं सोच सकते हैं तो शर भी ना सोचें। लेकिन इंसान अपने ऊपर कोई आजमाइश आए तो उसको चाहिए कि अपना मुहासबा करे, वो अपना जायजा ले, अपना जायजा ले। समझ गए? जज़ाकल्लाह खैर। ये और कोई सवाल है किसी के पास? ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Allahu 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 Allah Allahu Allah